9th students. Today we are going to do the revision of unit test 2. So be prepared, do properly revision, and after that I will be giving you one practice sheet. You have to solve that. Alright, so let's start. So each and every topic I am going to cover today. So what are the topics? First let me write over here. सबसे पहले है tables. Okay, tables from 11 to 15. Okay, so prepare properly, learn all the tables. Second, you have multiplication chapter, right? Then you have third topic is division, that is divide. Fourth topic you have addition of 4-digit number. Fifth you have subtraction, and after subtraction we have sixth write in words, and then seventh number write in figures. These are the topic which we are going to cover in the exam. Then you have before, after, and between, and lastly ninth one, that is put the correct sign, right? So this is your topic for unit test 2. So be prepared for these topics. So let's start with the tables. Now how table are going to come, you know it very well because you must have given all the tests before which we were having. So टेबल कैसे आएगा? ऐसे 11 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल्स टू डैश, ऐसे आ सकता है. हाउ पेपर पैटर्न इज कमिंग आई एम टेलिंग यू, एंड जहाँ नीड होगी आई विल बी टेलिंग यू हाउ टू सॉल्व. Tables can come in this form or like this. 12 like this. 12 eights are, मतलब 12 eights are, right? 12 eights are कितना होता है? This and this you have to find out. ये first हो गया, ये second हो गया, and third like this. 5 times 2 is like this also it can come. 5 times 2 is how much, that you know have to tell. 11 5 से क्या होगा? 55. 12 8s are 96. 5 times 2, 5 times 2 मतलब 5 2s are, 5 2s are 10. I'm just giving you example that in which pattern tables might come in this form. और एक और है fourth one. For example like this, 12 multiplied by dash is equals to 36. Now 12 की टेबल में कितने टाइम्स में 36 आता है? You have to find out. 12 3s are 36. इन 4 तरीके से आपके क्वेश्चंस टेबल के आ सकते हैं, राइट? एंड टेबल्स आर कमिंग फ्रॉम 11 to 15. So you have to be prepared for this. Clear? ये है पहला टॉपिक, टेबल्स. Now after tables come to multiplication. Multiplication you have already done. Wait, let me write the heading properly. Each and every topic I am going to cover, so you have to be very careful. Multiplication. Okay, so like this it can come. 23 multiplied by 4 is equals to कितना होगा? ऐसे भी आ सकता है. इसी क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकता है. 23 multiplied by 4 is equals to dash, right? Now you might have like 83 multiplied by 3, any number you may get. 3 digit also you have studied. 162 multiplied by 4 is equals to how much? तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं. like this also, 160 multiplied by 2 is equals to dash. So 3 digit and 2 digit multiplications are there in your course, so they all are going to come. So now how to solve? 4 3s are 12, carry 1, 4 2s are 8 plus 1, that is 9. We got the answer. So अगर आपके ऑप्शन में like A B C D 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से जो सही होगा उस पर सॉल्व आप कहाँ करोगे? रफ में, राइट?
नाउ लेट मी शो यू 23 मल्टीप्लाइड बाई 4 अगर ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर ये 1 है, इसके ऑप्शन दिए होंगे ए बी सी डी, 4 ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है। अब इन चारों ऑप्शन को आपको देखना होगा कि कौन सा सही है। कैसे पता चलेगा? यू हैव टू सॉल्व दिस 23 मल्टीप्लाइड बाई 4। आप कहाँ सॉल्व करोगे? अपने कॉपी में। अपने पास एक कॉपी आपको रखनी होगी मैथ्स एग्जाम में, एंड यू विल सॉल्व दियर 4 3 ज़ा 12, कैरी 1, 4 2 ज़ा 8 9। सो फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन आपको दिए थे 19, 92, 94 एंड नन ऑफ दीज। So now here which option is correct? A, B or C? So here question option number B is correct. None of these मतलब इन ऑप्शन में से कोई नहीं, राइट। सो नन ऑफ दीज आप तब तक लगाओगे जब आपके पास ऑप्शन में सही आंसर नहीं हो, राइट। सो एक ये तरीका है, क्लियर। देन फॉर एग्जाम्पल 136 मल्टीप्लाइड बाई 3 अगर दिया है इज इक्वल्स टू डैश, तो आप क्या करोगे? अपने रफ कॉपी में 136 मल्टीप्लाइड बाई 3 ऐसे सॉल्व करोगे। 6 3 ज़ा 18, कैरी 1, 3 3 ज़ा 9 प्लस 10, 3 1 ज़ा 3 4। सो 408 अगर आपके पास ऑप्शन में होगा, लाइक ए बी सी एंड डी, 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से जो सही ऑप्शन होगा उस पर आपको ऐसे टिक करना होगा। ऑलराइट, सो दिस इज योर मल्टीप्लीकेशन। Now after multiplication you have division, right? You have next is division. In division you will get questions like this, like dividend is equals to this and divisor is equals to this. For example ये 3 है, ये 72 है, ऐसे दिया है। So find बोल रहा है क्वेटेंट एंड रिमाइंडर, तो आपको क्या करना है? डिवाइड करना होगा। ऐसे 72 को 3 से ऐसे डिवाइड करेंगे एंड यू विल गेट क्वेटेंट एंड रिमाइंडर। क्लियर? सो लेट मी डू इट प्रॉपरली। क्वेश्चन ऐसे होगा, क्वेश्चन नंबर 1 फॉर एग्जाम्पल, फाइंड क्वेटेंट एंड रिमाइंडर, ऐसे क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन ऐसे भी होगा, क्वेश्चन 2 फाइंड क्वेटेंट, सिर्फ क्वेटेंट, इसमें रिमाइंडर नहीं पूछ रहा। सो नाउ अगर ये दिया है 27 डिवाइडेड बाय 5 और यहाँ दिया है 43, ओके, और आई राइट हियर 48 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन है और ऑप्शन आपके पास 4 दिए होंगे। सो यू हैव टू डिवाइड, 5 से 27 को डिवाइड करेंगे, 5 5 ज़ा 25, what you have got? Quotient is 5 and remainder is 2. अब इसके ऑप्शन कैसे दिए होंगे? ऐसे दिए होंगे A B C, लेट मी टेल यू, Q इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू और R इक्वल्स टू R इक्वल्स टू R इक्वल टू। तो आपको बहुत ध्यान से देखना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल सब में क्वेटेंट 5 दे दिया और यहाँ 1 2 3 3 दिया है, तो क्वेटेंट तो सब में सेम दिया है, बट रिमाइंडर हमारा क्या है? 2। तो जिस पे करेक्ट नंबर्स होंगे दोनों वो टिक करेंगे। क्लियर? ना फाइंड क्वेटेंट में भी ऐसे ही होगा, क्वेटेंट आपको दिए होंगे ऑप्शंस में, ओके, ए बी एंड देन ऐसे सी डी, 4 ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है। 1 2, ठीक है, 1 4 1 3 1 6, ये मान लो ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है। नाउ यू विल सॉल्व 4 से 48 को सॉल्व करेंगे, 4 1 ज़ा 4 एंड देन 8 उतारेंगे, 4 2 ज़ा 8। सो क्या आ गया? 12। 12 ऑप्शन इज करेक्ट, तो 12 पे टिक लगा देंगे। क्लियर? सो आपको सॉल्व ज़रूर करना है। इफ़ यू विल नॉट सॉल्व देन आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। ना रिवाइज करते हैं कि व्हाट इज डिविडेंड, व्हाट इज क्वोटेंट, व्हाट इज रिमाइंडर, एवरीथिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 3 डिवाइडेड बाई 12 है, ठीक है। सो 3 क्या है? डिवाइजर। इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि डिवाइजर कौन है, डिविडेंड कौन है। डिविडेंड यहाँ पे क्या आएगा? क्वेटेंट। सो 3 4 ज़ा 12। ना यहाँ पे जो 0 आए, दिस इज व्हाट? रिमाइंडर। सो यू शुड नो कि व्हाट इज क्वेटेंट, व्हाट इज डिवाइजर, व्हाट इज रिमाइंडर, एवरीथिंग यू हैव टू नो दिस। क्लियर? इट इज क्लियर टू यू ऑल? सो मल्टीप्लाई हो गया, डिवीजन हो गया, नाउ इट्स टाइम फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यू नो हाउ टू डू एड एंड सब्ट्रैक्ट, राइट? बट एडिशन सब्ट्रैक्शन ईजी नहीं आएगा, हमेशा वर्ड फॉर्मेट में आएगा। लाइक इफ़
Rita has 362 mangoes and Sita has 400 oranges. So how many total or how many oranges and mangoes are there? ठीक है, इन टोटल मैंगोज आर देयर विथ देम, उन दोनों के साथ. सो इस टाइप से वर्ड फॉर्मेट में होंगे. सो यू हैव टू ऐड 362 एंड 400 को ऐड करेंगे एंड देन यू विल गेट द आंसर और फिर उस पर आप टिक लगाओगे. क्लियर? डायरेक्ट एडिशन भी आ सकता है फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में, लाइक 2014 प्लस डैश इज इक्वल्स टू 4, यहाँ पे 2018 है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 4. अगर हम 4 इसमें ऐड कर देंगे तो वी विल गेट दिस नंबर. सो एस काइंड भी आ सकता है. ठीक है, लाइक ऐसे भी आ सकता है 163 प्लस 250 इज इक्वल्स टू डैश. तो आप इन दोनों को ऐड करके यू विल फाइंड आउट द सम. इन द सेम वे यू विल गेट द सब्ट्रैक्शन ऑल्सो. सब्ट्रैक्शन में भी आपके ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं. 4000 माइनस 2350 इज इक्वल्स टू क्या होगा, यू हैव टू फाइंड आउट. सो सब्ट्रैक्ट करके आप माइनस करके आप आंसर निकाल सकते हो. ऑप्शन चेक करोगे ABCD में से कौन सा सही है, उस पर टिक करना है. क्लियर? आप ये भी वर्ड फॉर्मेट में आ सकता है, लाइक इफ रीता हैव 25 बुक्स, she gave 20 books to Ram. She gave 20 books to Ram. How many books were left? How many books were left with her? Left with her मतलब उसके पास कितनी बची. ठीक है, सो क्या करेंगे, 25 माइनस 20 दैट इज 5. तो 5 बुक्स उसके पास बची. हमें कैसे पता चला? लेफ्ट, जब भी वर्ड लेफ्ट होगा या हाउ मच इज लेफ्ट, जब भी आपको ऐसा साउंड करे कि कितना बचा तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है. एंड जब पूरी टोटल पूछे कि व्हाट इज द टोटल सम, सम क्या है, टोटल क्या है, सो वहाँ पे आपका एडिशन. So we have done addition, subtraction. Now it's time for write in words and write in figures. Now if you are doing, आपके write in words किस तरह से आ सकते हैं, like check the spelling, कुछ इस टाइप से भी आ सकता है कि स्पेलिंग चेक करनी हो. चेक द स्पेलिंग ऑफ, मान लो ये है 2015, ये है. सो अब यहाँ पे ABCD 4 ऑप्शन दिए होंगे. जैसे मान लो ये है 215, ये मान लो ये दिया है. ओके, एंड लाइक दिस 2015, ओके, देन 2000, इट विल बी ऑलमोस्ट एक जैसे होंगे. सो यू हैव टू सी वेरी केयरफुली. 50 एंड देन नन ऑफ दीज. अगर ये क्वेश्चंस में ऑप्शन दिए हैं लाइक 215, तो आपको दिख रहा है ये कहाँ पे, दिस इज वंस, टेंस, 100 एंड 1000. तो 2015 इज द करेक्ट आंसर. सो यू विल सी 2015 ये सही है तो इस पर टिक लगाएंगे, बाकी पे नहीं टिक करना है. सो बहुत ध्यान से स्पेलिंग्स को चेक करना होगा. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ऐसे राइट इन फिगर्स में. फॉर एग्जाम्पल स्पेलिंग दी हुई है एंड राइट द नंबर लिखेगा. राइट द नंबर नेम फॉर, नंबर नेम किसका लिखना है, ऐसे 6432 ये क्वेश्चन है. देन देयर विल बी 1 2 3 4 ऑप्शन होंगे, लाइक 6042, 6432, 6035 एंड 6430. ऐसे 4 ऑप्शन दिए होंगे. जो सही है 6432 इज द करेक्ट ऑप्शन. सो हम इस पर टिक करेंगे. क्लियर?
सो यू हैव टू बी वेरी श्योर कि आपने कैसे क्वेश्चंस को पढ़ा है कि नहीं, स्पेलिंग चेक की है कि नहीं. अगर कुछ भी मिस्टेक होगी तो फिर आपके क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे, राइट. देन यू हैव पुट द करेक्ट साइन. पुट द करेक्ट साइन, ठीक है. दिस ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू, 3 साइन होते हैं. सो ना 4 डिजिट दिए होंगे, लाइक 4368, 3682 ये दिया है. अब इसमें आपको साइन लगाना है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है या इक्वल टू है. सो ना ये 4 है, ये 3 है. क्लियरली विजिबल है कि 1000 प्लेस पे 4 है. जिधर बड़ा होगा उधर माउथ ओपन होता है, राइट. सो दिस इज ग्रेटर देन. एंड ये कौन सा सिंबल है, लेस देन, राइट. सो इस तरह से आपके पुट द करेक्ट साइन के क्वेश्चंस होंगे. इट्स वेरी सिंपल. वहाँ पे डायरेक्ट लिखा होगा पुट द करेक्ट साइन, तो जो सही ऑप्शन होगा उस पर टिक करना होगा. आपको ऑप्शन ऐसे दिए होंगे ABCD, लाइक दिस, दिस, दिस और नन ऑफ दीज. क्लियर. ऐसे ऑप्शन होंगे. नाउ आफ्टर दिस, what comes before, after, between. Now what comes in between? In between 4012, 4014, इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आएगा. ऑप्शन दिए होंगे यहाँ पे 4011, 4013, 4015, 4020, ऐसे ऑप्शंस दिए होंगे. तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा दिस यू हैव टू टिक मार्क. ठीक है. दिस इज व्हाट कम्स इन बिटवीन. नाउ व्हाट कम्स बिफोर, ठीक है. एंड देन व्हाट कम्स आफ्टर. ठीक है. बिफोर के लिए आपको यहाँ पे नंबर दिया होगा. व्हाट कम्स बिफोर, ठीक है. किसके बिफोर, 3462. व्हाट कम्स आफ्टर, 5019. इसके बाद क्या आता है, यहाँ पे ऑप्शन दिए होंगे ABCD एंड हियर ABCD. सो यू हैव टू टेल मी द करेक्ट आंसर. 3461, 3641, 3463, 3400. ठीक है. ये ऑप्शन है. व्हाट कम्स बिफोर, इसके पहले क्या आएगा, 3462 के पहले क्या आएगा, 2 के पहले क्या आएगा, 1. सो 3600, नहीं, 3461 विल बी द करेक्ट आंसर. व्हाट कम्स बिफोर. व्हाट कम्स आफ्टर, ठीक है. आफ्टर है 5020, 5018, 5016, 5017. ये ऑप्शन दिए हैं. व्हाट कम्स आफ्टर, आफ्टर मीन्स इसके बाद क्या आता है. 19 के बाद क्या हो जाएगा, 9 है, 9 के बाद दैट मीन्स +1 कर देंगे. इसमें क्या होता है, -1. आप बिफोर में, आफ्टर में क्या होता है, +1. सो 19 विल बी 20. तो 5020 विल बी द करेक्ट ऑप्शन. So almost we have covered all the topics, right? What were the topics? Let me see. I have introduced you about the table कि कैसे tables के question आएगा. I've informed you. Multiplication भी मैंने बताया, division बताया, addition, subtraction, write in words, write in figure, before, after, between, and put the correct sign. I have covered all the topics. So you have to go through all the topic and आज मैं practice sheet दूंगी that you have to solve. All right. So if you want, आप एक दिन में पूरे क्वेश्चन सॉल्व करो या 2 दिन में करो, इट्स योर विश. आराम से करो. डू प्रैक्टिस मोर एंड मोर. ऑल राइट. So this was your quick revision of the chapters which are going to come in the unit test, right? So be prepared. बहुत अच्छे से पढ़ना है. Work hard, students, and all the best for your test. All right. Bye bye. Take care.